جی آج جملہ اسمیہ، تو جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے. آج کے ہمارا جو چیزیں انشاءاللہ اس میں ہو جائیں گی وہ تو ہو جائیں گی. باقی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ تفصیلاً میں نے یہ اسباق کروائے ہوئے ہیں. اگر کسی بہن کو کوئی بات تفصیلاً سمجھنے میں ضرورت پڑے تو وہ ان کو سن سکتی ہیں. چونکہ یہاں پر ہمارا مقصد اجرا بھی ہے ساتھ، تو وہ اگلے جو ہمارے 2 ہفتے ہیں وہ انشاءاللہ اجرا میں ہوں گے. اس میں آج میں طریقہ کار بھی بتاؤں گا تاکہ اس حوالے سے آپ لوگوں کے ذہن میں رہے اور آپ لوگ اس میں ساتھ شامل ہو سکے ہمارے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہلی چیز ہے جی نحب جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کی پہچان. جی تو یہ بات آپ پہلے کتاب کو دیکھیے. کتاب میں کیا لکھا ہے؟ بنیادی طور پر جملے 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور اسی کی ہمیں ضوابط قواعد کے ذریعے سے جو پہچان ہوتی ہے وہ اسی کی ہوتی ہے. باقی اس سے آگے جو جملے جڑتے ہیں ان کو ہمیں کتابوں سے قواعد ضوابط دیکھنے پڑتے ہیں. جس قرآن پاک کی ترکیبیں ہیں، ہم قرآن پاک کی ترکیبوں کو دیکھنا جی وہ یعنی کہ قرآن پاک کی ترکیبوں کے لیے ہمیں پھر بھی ضوابط کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ کیا محذوفات ہے، کیونکہ قرآن پاک میں محذوفات کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو پہلی چیز یاد رکھیے گا کہ ہم نے مفردات میں اسم اور فعل کی علامت پڑھ لی. ضوابط نحویہ جو کتاب میں نے بھیجی ہوئی ہے، میرے خیال میں دوبارہ بھیج دیتا ہوں تاکہ کچھ بہنوں کو اگر نہیں موصول ہوئی تو وہ دوبارہ دیکھیں. جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا حصہ اسم ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یعنی پہلا جز اگر اسم ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہے. اچھا، پھر دوسری چیز ہم نے لکھی ہے کہ پہلا جز مبتدا کہلاتا ہے، دوسرا جز خبر. تیسری بات جو پہچان ہے، عام طور پہ اسم بھی آ سکتا ہے. تو اسم میں کیا پہچان ہے کہ یعنی اسم ہی آتا ہے اکثر طور پر، تو معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. معرفہ، یہ بات یہاں سمجھیے. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں جیسے جی زید عالم. اب یہاں پہ کیا ہے جی؟ زید اسم معرفہ، عالم اسم خبر. تو یہ کون سا جملہ ہو؟ جملہ اسمیہ. کون سا جملہ ہوا جی؟ جملہ اسمیہ. سمجھ آ رہی ہے جی؟ کون سا جملہ ہوا جی؟ یہ جملہ اسمیہ. تو پہلا جز مبتدا، دوسرا جز خبر. مبتدا خبر مل کے دل نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ بات سمجھ میں آ گئی جی. یہ آسان جی. اور اسی طرح اگر پہلا جز فیل ہو تو جملہ فعلیہ ہوگا. آگے ضوابط نحویہ میں آگے دیکھ لیں جی. جس کا پہلا جز فیل ہو جملہ فعلیہ ہوگا. ٹھیک ہے. جملہ فعلیہ کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، فعل، فاعل اور مفعول. یعنی کم از کم 2 ہوتے ہیں، تیسرا اختیاری ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. میں اس کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں. جیسے دیکھیں جی، اب یہی والی مثال لے لیں. اب ہم فعل لے کے آتے تو جملہ فعلیہ بن جائے گا. علیمہ زید، علیمہ زید. ٹھیک ہو گیا جی. تو کیا بن کے جملہ فعلیہ. علیمہ فعل، زید فاعل. کیونکہ 2 جز ہے، پہلا جز کیا اسم. پہلا جز فعل ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ. سمجھ رہی بات کو جی؟ جی بھائی آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو یہ ہے کہ جملہ پہلا جز فعل ہے تو وہ جملہ فعلیہ، پہلا جز اسم ہے تو جملہ اسمیہ. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے چلتے ہیں. ضوابط نحویہ کو سامنے رکھیں تاکہ میں آپ کو
मुख्तसरन मुख्तसरन आपके सामने रखता हूं। देखें, जार मजरूर, जार मजरूर कहां पे होगा? जहां पर हुरूफ जारा में से कोई हर्फ आएगा। समझ रही बात को जी? हुरूफ जारा आप लोगों ने पढ़े हुए 17। अच्छा, ये जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक होकर जुमले का जुज बनते हैं। पूरा जुमला नहीं बनते, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक होकर जुमले का जुज बनते हैं। ये बात ज़हन में रखिए। अब ये मुख्तसरन में आपको किसके मुताल्लिक होते हैं ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें फाइल अगर इससे पहले उसके मुताल्लिक हो जाते हैं, इसमें मफूल के, मस्दर के, फेल के। ठीक हो गया? और अगर उनमें से कोई ना हो तो महजूफ आमतौर पे कोई भी निकाल लेते हैं अफाल आम्मा में से, साबितुन, काइनुन, जो भी निकाल सकते हैं वो निकाल। ठीक हो गया जी? ये मैं आपको अब किताब से मुख्तसरन जुबानी समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आगे इसमें यानी कि एक नजर से गुजर जाए, बाकी तफसीली वो चीजें वो मौजूद है। अस्मे मौसूला, मौसूल सिला, मौसूल सिला की तरकीब वहां होगी जहां पर अस्माए मौसूला जो आपने इल्म नहव में अल्फाज पढ़े हैं उनमें से कोई लफ्ज आ जाए। अल्लदी, अल्लती, अल्लदानी, अल्लदैनी, अल्लतानी, अल्लतैनी, अल्लाती, अल्लवाती, मामन, अय्युन, अय्यतुन, ये अल्फाज जहां पर आएंगे वहां पर मौसूल सिला की तरकीब होगी वरना नहीं होगी। समझ रही बात को जी? अच्छा, सिला जो है, सिला इसमें मौसूल तो लफ्ज होगा, उसके बाद सिला होगा। सिला पूरा जुमला बनता है, यानी जुमला पूरा जुमला आएगा तो वो सिला बनेगा वरना नहीं बनेगा। मैं आपको मिसाल से समझाता हूं, जैसे देखें, जी तवज्जो कीजिएगा। भाई पेज नंबर तीसरा है मेरा ख्याल है। अच्छा आप देखें, तवज्जो कीजिएगा, ज़ैदुनिल्लज़ी ज़हबा इलल बुस्तानी। अब देखिए ज़ैदुल मुब्तदा हो गया, पहले हिस्सा में शुरू में आ रहे हैं। जी पेज नंबर तीसरा है, दूसरा, बल्कि दूसरा सफा है, ज़वाबित नहवी जो मैंने आपको दोबारा भेजे हैं, आप जरा उस पर तवज्जो कीजिए। अच्छा, अब तवज्जो है जी, ज़ैदुनिल्लज़ी ज़हबा इलल बुस्तानी, ज़ैदुल मुब्तदा हो गया जी, अल्लज़ी इसमें मौसूल। अब देखें, याद रखिएगा, जहां इसमें मौसूल आ गया उसके बाद पूरा जुमला होना जरूरी है, वो फेलिया हो इसमिया हो, होना जरूरी है पूरा जुमला। अब देखिए, ज़हाबा फेल हो जाएगा, इसके अंदर हुआ जमीर उसका फाइल हो जाएगी, इला अल जारा हो जाएगा, अलबुस्तानी मजरूर हो जाएगा। मैंने कहा था जारा मजरूर मुताल्लिक होते हैं, तो ज़हाबा के मुताल्लिक हो जाएंगे, फेल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर पूरा जुमला होकर सिला हो। फिर अगली बात, मौसूल सिला मिलकर, हालांकि सिला पूरा जुमला होता है लेकिन मौसूल सिला मिलकर पूरा जुमला नहीं बनते, जुमले का जुज बनते हैं। तो अल्लदी इसमें मौसूल अपने सिला से मिलकर अब जुज बन रहे हैं, खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमले इसमें खबर। समझ में आ रही बात जी? ये बात समझ में आ रही है? तो ये जुमला मौसूल, इसमें मौसूल, मौसूल सिला की तरकीब वहां होगी। नहीं समझ में आई? ये बहन पूछ कह रही है नहीं समझ में आई जी। कोई ऐसी बात दोबारा पूछ लीजिए, कौन सी बात समझ में नहीं आ रही? जी
یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر جی۔ تو دیکھیں کہ میں نے جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ موصول صلہ کی ترکیب وہاں ہوگی جہاں پر اسماء موصولہ آئیں، ایک بات۔ دوسری بات، صلہ جو ہے پورا جملہ بنے گا، یعنی پورا جملہ مل کر صلہ ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات جی؟ تو جیسے یہاں پہ میں نے مثال سے سمجھایا۔ اچھا جی، اب آگے چلیں، اب آگے کتاب میں دوبارہ دیکھیں، اس میں اشارہ، یہ بھی جملے کا جز بنتے ہیں، یہ بھی کیا بنتے ہیں جی؟ جملے کا جز۔ اچھا کہاں پہ بنیں گے؟ جہاں پر اسماء اشارہ کے الفاظ میں سے کوئی لفظ آئے گا تو وہاں پہ اشارہ مشار الیہ بنیں گے، یعنی یہ ترکیب وہاں پہ ہوگی جہاں پہ الفاظ اسماء اشارہ آئیں۔ اگر ان باتوں کو ذہن نشین کر لیں گے تو پھر اسماء اشارہ مشار الیہ کی ترکیب آسان ہو جائے گی۔ تو دیکھیں ہم نے کیا پڑھا تھا، ہاذا، ہاذانی، ہاذیہی، ہاذیہی، ہاتانی جی، ذالکا، ذالکا، تلکا، تانیکا، اولئکا، یہ الفاظ ہیں۔ جہاں پر یہ الفاظ آئیں گے وہاں پر جو اس میں اشارہ اور مشار الیہ کی ترکیب ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ بھی اشارہ اور مشار الیہ مل کر جملے کا جز بنیں گے، پورا جملہ نہیں بنیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ اچھا ایک اور بات اس میں ذہن نشین کر لیجیے، جہاں پہ لکھی ہے کہ اگر اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا اسم آئے تو پھر اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر جملے کا جز بنتے ہیں، اور اگر الف لام والا اسم نہ آئے تو اکیلا اس میں اشارہ جملے کا جز بن جاتا ہے۔ دوبارہ سمجھیے، اگر اس میں اشارہ کے بعد الفاظ اس میں اشارہ کے بعد الف لام والا اسم آئے تو وہ مشار الیہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، مشار الیہ کے ساتھ جملے کا جز بنتے مل کر، اور اگر الف لام والا اسم نہ آئے تو صرف اس میں اشارہ ہی جملے کا جز بنتا ہے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جی دیکھیں، بسم اللہ جی، ذالک الرجل مجتہد، مجتہد صحیح لکھا، جی مجتہد۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے، توجہ کیجیے، ذالک کا اس میں اشارہ ہے۔ اچھا اس کے بعد الف لام والا اسم آ جائے، آ رہا ہے نا، تو اشارہ اور مشار الیہ دونوں مل کر جملے کا جز بنیں گے۔ ٹھیک ہے، ذالک اس میں اشارہ۔ اچھا پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے، اس میں اشارہ کو موصوف کہتے ہیں، مشار الیہ کو صرف بھی کہتے ہیں، ساتھ ساتھ ملا کر۔ تو ذالک اس میں اشارہ موصوف، الرجل صفت، موصوف صفت مل کر جملے کا جز بن رہے ہیں۔ یہ جملے کا جز جو ہے نا، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم جب عبارت لکھتے ہیں تو اس میں اشارہ کو لکھ دیا جی، پورا جملہ بن کے بنے گا نہیں جب تک مشار الیہ یعنی الگ سے جو پورا جملہ۔ اب دیکھیں ذالک الرجل، ذالک اس میں اشارہ موصوف، الرجل صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، جملے کا جز بن گئے، چونکہ شروع میں ہے تو مبتدا، مجتہد خبر۔ اچھا اسی کو مٹا لیں، اس میں بیچ میں مٹا دیتا ہوں، الرجل کو مٹا دیتا ہوں، تو اب دیکھیں ذالک مجتہد۔ اب یہاں پر الف لام والا اسم نہیں ہے تو یہاں پہ ترکیب کیا ہوگی، ذالک اس میں اشارہ مبتدا، مجتہد خبر۔ سمجھ رہی بات کو جی؟ تو یہ فرق ذہن نشین کر لیجیے۔ سمجھ رہی بات کو؟ اب آگے چلیں جی، آگے بحث ہے مفعولات کی، مفعولات خمسہ، 5 مفعولات، ٹھیک ہے، ان 5 مفعولوں میں سے ہر ایک کی پہچان ہے، اور میں اس کو مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں
تاکہ آپ لوگوں کی نظر سے وہ چیز گزر جائے. میری کوشش ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ آپ اس کے نظر سے گزار دیا جائے تاکہ اجرا میں پھر ہمیں آسانی. دیکھیے 5 مفعول ہیں. پانچ مفعول. اچھا اب مفعولات خمسہ میں آخر سے شروع کروں گا. پہلے آپ کو ذکر کرتا ہوں, اسی ترتیب سے آخر سے لے کے آؤں. مفعول بہ اس کے استعمال بکثرت ہے. مفعول لہو, مفعول معہ, مفعول مطلق, مفعول فیہ. اچھا اب میں آخر سے مثالیں آپ کو یعنی کہ پہچان بتلاتا ہوں. مفعول فیہ جہاں پر بھی فعل کے بعد اسم میں زمان یا مکان, جگہ یا وقت کے معنی پائے جائیں وہ مفعول فیہ بنے. ٹھیک ہے, زمان یا مکان, جگہ یا وقت کے معنی پائے جائیں فعل کے بعد کسی اسم میں تو مفعول فیہ بنے. جیسے صلیت خلفک, میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. خلفک پیچھے, مکان کا معنی پائے جا رہے ہیں پھر مفعول فیہ. جی صمت رمضان, میں نے رمضان کے روزے رکھے. رمضان کیا ہے؟ وقت ہے, تو لہذا رمضان مفعول فیہ ہو. اچھا اسی طرح اب دوسرے آ جائے. مفعول فیہ, مفعول فیہ ہو گیا. مفعول مطلق فعل کے بعد, توجہ کیجیے گا, فعل کے بعد اسی مادے سے, جس مادے سے فعل آیا ہے اسی مادے سے کوئی اسم آ جائے مصدر کے طور پر تو مفعول مطلق ہوگا. یا کم از کم فعل کے معنی میں آ جائے. ٹھیک ہو گیا جی, فعل کے معنی میں آ جائے. میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. جی جی دیکھیں, ضربت, چونکہ ہمارے عام طور پہ مثالیں استعمال کی اس لیے ضربت ضربن, یہ کیا ہے جی؟ مفعول مطلق. کیوں کہ اسی مادے سے, جس مادے سے فعل ہے اسی مادے سے کیا ہے؟ مفعول. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا دوسری مثال کم از کم اس معنی میں ہو جیسے جلست قعودا. اب مادہ الگ الگ ہے لیکن معنی ایک. اچھا جی یہ ہو گیا جی. اب آگے ہے مفعول لہو. مفعول لہو کا پتہ معنی سے چلتا ہے کہ کسی فعل کے بعد اسم کو لایا جا رہا ہے, اس اسم میں بتلایا جا رہا ہے کہ فعل کس غرض سے کیا گیا, تو وہ کیا ہوگا؟ مفعول لہو. جیسے مثال کے طور پہ جی ضربت تادیبا, میں نے مارا ادب سکھانے کی غرض. تو یہ کیا ہے جی؟ مفعول لہو. بھئی سب کو سمجھ میں آ رہی بات جی؟ اچھا جی جی آگے. اب مفعول ماہو کی پہچان آسان. مفعول ماہو کی واو ہو, فعل کے بعد واو آئے اور اس وہ واو ساتھ والا معنی دے. جیسے ذهبت و استاذا, میں گیا استاد کے ساتھ. اب یہاں پہ واو کیا ہے؟ واو یہ مع کا معنی دے رہا ہے, ساتھ کا معنی دے رہے ہیں, تو یہ مفعول معہ. سمجھ میں آ رہی بات جی؟ یہ کیا ہوگا جی؟ مفعول معہ. یہ والا جو ہے یہ مفعول معہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یعنی واو, یہ واو بمانے مانے تو یہ مفعول معہ ہو گئی استاذن. اچھا جی اب آگے رہ گیا, آخر میں رہ گیا مفعول بہ. ان تمام علامتوں میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے تو مفعول بہ ہے. یہ آسان سی بات ہے اور اس کے استعمال بکثرت ہے.
मफूल फीही का इस्तेमाल भी कसरत के साथ है, और इन तमाम अलामतों में से कोई अलामत ना पाई जाए तो मफूल फी वो मफूल भी है जी। जैसे ज़रबतु ज़ैदन जी, जलस्तु जी, जलस्तु जी, क्या होगा जी, जलस्तु हूँ मैंने उसको बिठाया, या अजलस्तु होगा मैंने उसको बिठाया, अदबतु में उसको ले गया। ठीक है, जमीर जो है मंसूब मुत्तसिल की जो जमीर है वो मफूल भी होती है हमको। ठीक है, अकल जी, नजर तो किताब, मैंने किताब को देखा जी। अकल कतब तो बिल कलम किताबन, किताबन तो मफूल होगा, रिसालतन मैंने रिसाला लिखा। यानी जो भी मफूल बिही वो आमतौर पे बकसरत इस्तेमाल है, और तमाम के तमाम जो मफूलात के अलामतें वो ना पाई जाए तो मफूल बिही हो। ठीक हो गया जी। तो ये हो गया। अब आगे किताब में देखिए। अच्छा, अब आगे किताब में देखें, जुमला इस्मिया था। जुमला इस्मिया कौन सा जुमला था जी, कोई बहन बतलाएंगी? जिसका पहला जुज इसम हो। जी, जिसके पहले जुज इसम हो। ठीक हो गया। अब जुमला इस्मिया, अब जुमला इस्मिया पर कुछ हुरूफ दाखिल होते हैं जिससे उस जुमले की तरकीब के अल्फाज बदल जाते हैं, तरकीब तकरीबन वही होती है। ठीक हो गया। अब किताब से देखें, अगर हुरूफ मुशब्बा बिल फेल 6 हुरूफ इन्ना अन्ना का अन्ना लईता लाकिन्ना लाअल्ला, ये अगर दाखिल हो जाएं तो ये होंगे भी जुमला इस्मिया पर ही। तरकीब तकरीबन वही होगी लेकिन अल्फाज बदल जाएंगे। हर्फ मुशब्बा बिल फेल, और जो मुब्तदा बन रहा था पहले वो उसका इसम बन जाएगा, जो खबर बन रहा था इसके खबर बन जाएगा। तरकीब एराब बदल जाएगा, बस ये दो तब्दीलियां आएंगी। यानी तरकीब के अल्फाज बदल जाएंगे और एराब बदल जाएगा। पहले मुब्तदा पर रफा आना था, अब इस पर नसब आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसी तरह अफाल नाकिसा है, ये भी जुमले इसमें पर दाखिल होंगे। इसी तरह अफाल मुकारिबा है, ये भी जुमले इसमें पर दाखिल होंगे। इसी तरह मा और ला है, वो भी जुमले इसमें पर दाखिल होंगे। इसी तरह लाइन फिजिन से, वो भी जुमले इसमें पर दाखिल होंगे। ये मैंने खुलासतन आप लोगों के सामने रख दिया है। मैं मिसाल से समझा देता हूँ, एक एक मिसाल आपके सामने रखकर, ताकि ये बात जहन नशीन हो जाए। एक ही मिसाल सामने रखता हूँ और उसी से जी जी जवाब तनाविया से, मिसाल के तौर पे जैसे देखिए, ज़ैदुन आलिमुन था। ठीक है, ये सादा जुमला था। अब हमने हुरूफ मुशब्बा बिल फेल में से जी कअन्ना को मैं लेता हूँ, कअन्ना। ठीक है, कअन्ना ज़ैदुन, ज़ैदन हो जाएगा आलिमुन। अब देखें सिर्फ क्या बदला, अल्फाज, अल्फाज वही है, तरकीब के अल्फाज बदले। कअन्ना हर्फ मुशब्बा बिल फेल, ज़ैदन कअन्ना का इसम, आलिम कअन्ना की खबर। और दूसरा पहले ज़ैदन पर रफा आ रहा था, अब नसब आएगा, क्योंकि कअन्ना की अन्ना की इसम क्या होता है, ये हुरूफ मुशब्बा बिल फेल की बात होगी। माना भी चूंकि बदलेगा, क्योंकि कान्ना की वजह से माना बदल जाएगा। ज़ैदुन आलिम का मतलब है ज़ैद आलिम है, और कान्ना गोया की माना देता है, तो गोया के ज़ैद आलिम है। ठीक हो गया जी। अब देखिए, अब यही ज़ैदुन आलिम है, लेकिन हुरूफ मुशब्बा बिल फेल अगर शुरू में आ जाते हैं तो फिर अंदाज बदल जाएगा। काना लाते हैं, काना, काना ज़ैदुन आलिमन। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या अफाल नाकिसा है, काना फेल नाकिस, ज़ैदुन काना का इसम, आलिमन काना की खबर। काना फेल नाकिस अपने इसम और खबर सुन के जुमला फेलिया कब हुआ। अब यहाँ पर भी यही चीज भी हुआ, माना भी बदला है, यानी तरकीब के अल्फाज भी बदले हैं और एराब भी बदले हैं। तरकीब अंदा यानी कि अल्फाज वही है। ठीक हो गया जी। अब देखें, काना को हटाकर हम क्या लगा देते हैं, माँ लगा देते हैं, माँ, माँ बला मुशाबिह बली से जो वो लगा दे, माँ ज़ैदुन आलिमन। ठीक हो गया। मैं इसको मिसाल से आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके, अगर आप इसको तवज्जो से समझेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। इतनी सी बात है, यानी जो पढ़ा हुआ है ना वो समझ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब लाइन फिजिन से उसमें जरा ये होता है कि जो है ना उसका इसम आमतौर पे नकीर आता है। ठीक है, ला रजुला फिद्दार।
आ सकता है, लेकिन बहरहाल ये हो गया जी, समझ में आ गया जी, उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो अब ये हो गया जी, ये सारे जुमले इस्मिया के साथ इनका ताल्लुक। आगे रह गए हाल और मुस्तस्ना और जी तमीज, मुमय्यज तमीज। मुमय्यज तमीज का ताल्लुक अदद के साथ है जाने, अदद यानी जहां पे इबहाम आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे मुमय्यज तमीज की तरकीब होती है। इस तरह हाल बुलहाल का ताल्लुक ये है कि फेल के बाद इसमें फाइल या इसम मफूल के सीगे नकीरा मंसूब होकर आ जाएं, फेल के बाद इसमें फाइल या इसम मफूल के सीगे नकीरा मंसूब होकर आ जाएं, तो ये हाल बुलहाल की तरकीब होती है, और ये भी जुमले का जुज बनते हैं, पूरा जुमला नहीं बनता। ठीक हो गया जी। अच्छा, मुस्तस्ना हुरूफ इस्तिस्ना 8 है, इल्ला गैर से वहाशा खला आदा मा खला मादा। इन हुरूफ, ये हुरूफ जहां पे आ जाए वहां पर मुस्तस्ना वाली तरकीब होती है। इनसे पहले मुस्तस्ना मिनू होते हैं, उनके बाद मुस्तस्ना होते हैं, वो भी दोनों मिलकर जुमले का जुज बनते हैं। ठीक हो गया जी। आगे चूंकि मुक्कत, ताकीद, मातूफ वाले, मातूफ, ये सारी चीजें का ताल्लुक दूसरे दर्जे से, इसलिए आप इसमें पढ़ सकती हैं, और मैं जो है आखिरी बात आपको इसमें समझाता हूँ जो हमें समझने में मुआविन होगी, यानी कि जैसे क्या क्या कहते हैं उसको जी, इजरा में। इधर देखिए, तवज्जो कीजिएगा, अब बिल्कुल तवज्जो से बैठे, मुझे ये बतलाएं कि मरफूआत कितने हैं, जो अभी मैंने समझा दिए, मरफूआत कितने हैं बराह रास्त जिन पर एराब आता है? मरफूआत 8 हैं 12 जी। मरफूआत। मंसूबात कितने हैं? अच्छा 12। मंसूबात 12 है। मजरूरात कितने हैं? 2, कुल 22 हो। तो मैंने अब देखे बराह रास्त इन पर एराब आते हैं, ठीक है। तो मजरूरात, मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात, अगर ये समझ लिए जाए तो एराब की पहचान आसान हो जाती है, ठीक है। अब देखिए किताब जवाब तराबिया को खोलिए, इसम के एराब की बहस। इसम पर रफा कब आएगा? इसम पर रफा उस वक्त आएगा जब वो मरफूआत में से कोई एक बन रहा होगा बराह रास्त। मरफूआत में से, बराह रास्त मरफूआत में से कोई एक बन रहा होगा। अब ये बड़ी अहम बहस है कि मैं आपको खुलासा के साथ समझाना चाह रहा हूँ, और अगली उनमें इबारतों में ये आपको यानी तरकीब में आपसे पूछी जाएगी, और आपको अगर ये समझ आ जाएगी तो आसान होगी। रफा कब आएगा जी? इसम हालत रफी में कब होगा जी? कोई बहन बतलाएं। जब मरफूआत में से कोई एक बन रहा हो बराह रास्त। ठीक हो गया जी। इसम पर रफा उस वक्त आएगा कि जब मरफूआत में से कोई एक बन रहा होगा बराह रास्त। अच्छा, नसब कब आएगा? जब मंसूबात जो 12 है उनमें से कोई एक बन रहा होगा बराह रास्त। और जर कब आएगा? जब मजरूरात में से कोई एक बराह रास्त बन रहा होगा। अब मैं आपको मिसाल से समझाता हूं। जी, मिसाल से समझाता हूँ, जैसे देखिए, ज़राबा ज़ईद, ठीक है, ज़रबतु ज़ईदन, मररतु बिज़ईद। अब देखिए एक ही लफ्ज है, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या बन रहा है? इस पर रफा आ रहा है,
क्यों फाइल बन रहा है, यहाँ पे नसब आ रहा है, क्यों मफूल बन रहा है, यहाँ पे जर आ रहा है, क्यों मजरूर बन रहा है। यानी हालत रफी में है तो रफा, मरफुआत में से कोई एक बन रहा है तो रफा, मंसूबात में से कोई एक बन रहा है तो नसब, मजरूरात में से कोई एक बन रहा है तो जर। समझ रही बात को? मेरी बात समझ में आ रही है जी सबको? अच्छा जी, अब अगली बात इससे भी ज्यादा अहम है, जिसमें जिसमें मतलब समझ जिसमें में परेशानी होती है। भाई हालत रफी में तो आ गया, लेकिन हम देख रहे हैं कहीं पर रफा जो है ना वो तरमीन आ ही नहीं रही, फिर भी हम कह रहे हैं कि मरफू है। ठीक है, तो भाई 16 किस्में आप लोगों की नजर से गुजरी, 16 किस्में एराब की, 16 किस्में। हमारे उस्ताद मोहतरम जब हमें नहव पढ़ाई, जब 16 किस्में आई तो सासा फरमाने लगे कि ये 60% नहव है, जिसको ये आगे गोया कि उसको नहव आ गई। यानी ये तो पता चल गया कि मरफुआत में हो तो रफा आता है, मंसूबात में हो तो नसब आता है, मजरूरात में हो तो जर आता है। अब अगली बात यह है कि जर किस तरह आएगा, क्योंकि एराब कभी तकदीरी होता है, कभी लफ्जन आता है, कभी हरफन आता है। तो उसको समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि भाई एराब किस किस तरह आता है। समझ में आ रहा है जी एराब किस किस तरह? तो याद रखिएगा कि एराब, तवज्जो कीजिए, 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश, इनके साथ भी आता है। इसको एराब बिल हरकत कहते हैं। क्या कहते हैं जी? और एराब अलिफ वाव और या, इनके साथ भी आते हैं। इसको एराब बिल हर्फ कहते हैं। और कभी फर्ज किया जाता है, ना हरफन आ रहा है ना हरकतन आ रहा है, लेकिन फर्ज किया जा रहा है। तो 16 किस्में हमें ये बतला रही हैं कि किस लफ्ज का एराब कब क्या आएगा। रफा तो आना है, लेकिन रफा कब किस तरह आएगा। ये बात फायदा हो रहा है आप लोगों को, कुछ समझ में आ रही बात? ये तो पता चल गया कि मरफुआत में से इस पर रफा आना है, लेकिन बिल हरकत आना है, बिल हर्फ आना है, तकदीरन आना है। ये 16 किस्में हमें ये बतलाएंगी कि भाई किस तरह आना है। ठीक हो गया जी? मैं मिसाल से समझाता हूँ आप लोगों को। ये अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। जैसे देखिए, अब ये क्या है, 16 किस्मों में से इसम मुफरद मुनसरिफ सही है, तो इस पर एराब बिल हरकत है, ज़ई बिल। ठीक है, अच्छा, अब जराबा को हम इसी तरह रहने देते हैं, दूसरा लफ्ज लाते हैं जी। क्या लाते हैं जी? अखू का। अब ये देखें जराबा अखू का, अब यहाँ पर एराब बिल हर्फ आ रहा है। अब यहाँ पे रफा तो आ रहा है, लेकिन रफा वाव के साथ आ रहा है। ठीक हो गया जी? इसी तरह जराबा को हम यूं ही रहने देते हैं जी। मुस्लिमून,
अब यहाँ पे रफा आ रहा है लेकिन वाव के साथ आ रहा है। समझ रही बात को जी? अच्छा, इसको मिटाकर हम यहाँ पे मूसा ले आते हैं, जराबा मूसा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, ना अरब बिल हरकत आ रहा है, ना अरब बिल हर्फ आ रहा है। तो ये 16 किस्में हमें ये बतला रही हैं कि भाई रफा इस तरह आएगा। समझ गई बात को जी? तो ये चीज है जी, इंशाल्लाह ठीक हो गया जी। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने कोशिश की किसी हद तक हम इन चीज़ों को समझ लें। तो ये कुछ इसको 16 किस्मों की मैं प्रैक्टिस अगले दिन यानी उसमें भी करवाऊंगा, और बाकी जो तरीके वो जो है इजरा का तरीका होगा वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ, फिर वॉइस मैसेज कर दूँ, क्योंकि अब सबक में एक आध मिनट रह गया, वो बात पूरी नहीं हो सकेगी। बस उसका खुलासा मैं आज कर देता हूँ, चले जब तक हो जाए कि जी हरफी आ जाएगी। जो बहन किसी को बस समझ में नहीं आ सकता तो फिर वो पर्सनल पूछ ले, मैं उनको फिर अलग से समझा दूँ, ताकि यानी कि यहाँ पर जो सिलसिला वो चलता है। तो देखिए अब उसमें अगली क्लास में ये होगा इजरा का, आप लोगों को से ज्यादा पूछा जाएगा। तो आप लोगों में से जो वॉइस आवाज के जरिए से, मैसेज के जरिए से नहीं, तो जो इसमें हिस्सा लेना चाहती हैं कि भाई मैं बतलाना चाहती हूँ, उससे क्या होता है, झिझक दूर होती है, यानी समझना आसान हो जाता है, यानी कि बात काफी हद तक समझने की मतलब जी वो होगी। वो मैं सफ़ा भी भेज दूंगा, हम बुखारी शरीफ से करेंगे, ठीक है। 16 किस्में कौन कौन सी हैं भाई, वो तो इल्म नहव में लिखी हुई है 16 किस्में, ठीक हो गया जी। तो उसमें ये होगा कि बिंत के साथ उनके साथ अपना नाम भेज दें कि भाई मैं हिस्सा लेना चाहती हूँ, यानी कि बाकी जो सुनेंगी उनको भी फायदा होगा, लेकिन जो साथ मेरे साथ मुझे बतलाएंगी उनको ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि मेरी बात को समझ गई है, बाकी नहीं समझ में आएगी तो मैं वॉइस मैसेज कर देता हूँ, और फिर वाले दिन क्लास में आप लोगों को करवा के समझा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक हो गया। उसके लिए जरूरी है कि आपके लोगों के पास लुगत हो, लुगत जरूरी है आप लोगों के पास, लुगत हो। और जो है इल्म नहव, इल्म सर्फ, जो किताबें हैं जो आप लोगों ने पिछले सुन ली हैं, मजीद उनको सुने, बाकी इंशाल्लाह फिर मैं रहनुमाई कर दूंगा मुकम्मल इंशाल्लाह फिर वाले दिन। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।